Hello everyone, a very good morning students. This is Deepa. Welcome to Learn Social Science. Students, today we are going to start our new chapter, that is weaver, iron smelters and factory owners. Means you can say bunkar, means who are involved in weaving, and iron smelter means who are involved in smelting, means लोहा बनाने वाले लोग, and factory owners यानी कि factory के मालिक. So now we are going to start. You can see a image. Students, this is a trading ship on the port of Surat in the 17th century. Okay, सूरत बंदरगाह है ये, और ये यहाँ पर आप बहुत सारे व्यापारिक जहाज़ यानी कि जो ट्रेडिंग शिप्स हैं उनको देख सकते हैं. एंड दिस इमेज बिलोंग्स टू द 17th century. Okay, as we all know that Surat and Gujarat on the west coast of India was one of the most important ports of the Indian Ocean trade. Dutch and English trading ships began using the port from the early 17th century. Its importance declined in the 18th century. मतलब ये जो हमारा वेस्टर्न पोर्शन है गुजरात का, यहाँ पे सूरत जो कि गुजरात में है, हिंद महासागर के रास्ते में जो भी हमारा जो ट्रेडिंग वगैरह होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट है ये. ठीक है, डच और ब्रिटिशर्स जो हैं यहाँ पर वो ट्रेडिंग शिप लेकर के आते हैं, और मोस्टली 17th सेंचुरी में इसको स्टार्ट किया गया था और काफ़ी टाइम तक ये यूटिलाइज़ किया गया. बट आफ्टर दैट क्या हुआ कि 18th सेंचुरी आते आते इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन होती गई, मतलब थोड़ा जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो कम होने लगी. राइट. So as it is written here that trading ships on the port of Surat in 17th century. This chapter tells the story of crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries, namely textile and iron and steel. Both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. Mechanized production of cotton textiles made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. And when its iron and steel industry started growing from the 1850s, Britain came to be known as workshop of the world. Right students? Workshop of world means दुनिया का कारखाना, means कारखाना. Workshop means कारखाना. So students, we are going to study about two main industries, that is crafts and industries. Means we can say mostly in this chapter we'll get the knowledge of craft and industries, and two main industries were टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील. राइट, यानी कि कपड़ा उद्योग और लोहा व इस्पात उद्योग. ठीक है, लोहा और इस्पात मीन्स होता स्टील. बोथ दीज इंडस्ट्रीज वाज क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड. और ये आज के टाइम पर, मतलब आधुनिक विश्व की बात करें अगर हम, तो कैसा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की विजन से देखते हैं हम इसको कि औद्योगिक क्रांति है, और ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं. जो ये टेक्सटाइल है यानी कि जो कॉटन टेक्सटाइल का जो वर्क है, ये क्या करते हैं, इसी टाइम पर क्या हुआ, 19th सेंचुरी में ब्रिटेन जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मेजर सेंटर बन गया. ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इंडस्ट्रियल नेशन बन गया. और 1850 का जो टाइम पीरियड था, यानी जो डिकेड था, 1050s का डिकेड था, उसने ब्रिटेन का जो लोहा और स्टील था, मींस आयरन स्टील इंडस्ट्री थी, वो इतनी ज़्यादा फ्लरिश हुई, इतनी ज़्यादा मतलब प्रोग्रेसिव हुई, एक तरीके से बहुत पनपी. तो फिर क्या, ब्रिटेन ना दुनिया का कारखाना कहलाने लगा. हियर यू कैन सी वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. And when in the decade of 1850s, and in this chapter we are going to talk about two major industries, that is one is textile industry and second one is iron and steel industry. Right students?
Now we'll move towards the industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India. You have been seen in chapter 2 how the English East India Company interest in trade and led to occupation of territories, and how the pattern of trade changed over the decades. In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through this sale. With the growth of industrial production, British industrialists began to see India as a vast market for their industrial products, and over the time manufactured goods from Britain began flooding India, right? How did this affect Indian crafts and industries? This is question we will explore in this chapter. ठीक है, इसकी ही हम डिस्कशन करेंगे. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरा, यू कैन से. So now I am going to start from here. जो इंडिया में जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, मतलब हम बोल सकते हैं कि औद्योगिकरण था, उससे क्या हो रहा था, भारत पर ब्रिटिश जो क्या कर रहा था, अपना बहुत प्रभाव बनाने लगा था. बहुत क्लोज कनेक्शन हो गए थे उनके, और एक तरीके से विन करता जा रहा था. और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था. मतलब हम ये कह सकते हैं कोलोनियलिज्म क्या है, कोलोनाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स. इंडिया क्या थी उस टाइम पर, एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है ना. एंड एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2, हमने इसके बारे में बहुत डिस्कस किया है. ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हमारे ट्रेडिंग अफेयर्स थे उनके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है, और जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट थे उनके बारे में भी. तो हम ये देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट थे उनकी कैसे उन लोगों ने मतलब टेक केयर की. एंड उसके बाद भारतीय जो लैंड पार्ट था उस पर कब्जे हो गए, और किस तरीके से आगे आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपना व्यापार जो था हमारी कंट्री में बढ़ाते चले गए, है ना. ये हमें पता है ना कि कैसे उन्होंने यहाँ पर हमारे एक तरीके से थोड़ा सा ट्रेडिंग के करने के लिए हमारी इंडिया में आए, एंड आफ्टर दैट उन्होंने प्रॉपर उस पर ग्रिप बना ली, प्रॉपर कंट्रोल कर लिया हमारी इंडिया में. 18th सेंचुरी में देखिए, हियर यू कैन सी इन द लेट 18th सेंचुरी कंपनी वॉज बाइंग गुड्स इन इंडिया. और फिर क्या करने लगी, इंडिया से ही गुड्स खरीदने लगी, और एक्सपोर्ट कहाँ करने लगी उनको, एक्सपोर्टिंग दैम टू इंग्लैंड एंड यूरोप. उनको इंग्लैंड और यूरोप में ग्रो करने लगी, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. और उससे क्या मिलता था, उसको बहुत प्रॉफिट हो रहा था. जो भी उसको मतलब बाय एंड सेल से जो भारी मुनाफा होता था उनको, वो उनको यूटिलाइज करने लगे. जैसे जैसे जो ब्रिटेन था वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनता जा मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट बनता जा रहा था और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने लगा था. तो इसका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ के जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको भारत में अपने इन्वेस्ट करने में बहुत मतलब बेनिफिट फील होने लगा. देन उन्होंने क्या किया कि मोस्टली उन्होंने हमारी कंट्री में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया. हियर यू कैन सी द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बिगेन टू सी इंडिया एज अ वास्ट मार्केट. और किस तरीके से देखने लगा हमारे इंडिया को वास्ट मार्केट, बिकॉज फॉर देयर इंडस्ट्रियल products, and over time manufactured goods from Britain began flooding India. धीरे धीरे क्या होने लगा, इंडिया कैसे होने लगी, फ्लडेड होने लगी धीरे धीरे. इसी तरीके से ब्रिटेन में जो तैयार मटेरियल था ना अपना, वो भारत में के बाज़ारों में आके बेचने लगे. और जो हमारी कंट्री में इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इंडियन क्राफ्ट्स के ऊपर और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, यानी कि जो भारतीय शिल्पकार लोग थे उनके ऊपर और हमारे देश के उद्योगों पर. मतलब मोस्टली इस चैप्टर में हमें इसी का डिस्कशन करना है, राइट स्टूडेंट्स. सॉरी, विल मूव हियर अगेन. हाँ,
now we are moving towards new para, that is Indian textile and the world market. Right, students? Here you can see a image which is what? That is patola, right? Patola weaving है ये, and it belongs to the 19th century, we can say mid 19th century, and that was woven in Surat, Ahmedabad and Patan, and highly valued in Indonesia also. It became part of local weaving tradition here. ठीक है ना, ये जो कि सूरत में वेव की जाती थी, ये अहमदाबाद और पाटन में भी, और इसकी जो वैल्यू थी इंडोनेशिया में इसका बहुत वर्चस्व था, और ये धीरे धीरे क्या करती जा रही थी, लोकल वीविंग जो ट्रेडिशन था उसका पार्ट बनती जा रही थी. राइट. Indian textile and the world market. Let us first look at textile production. Around 1750, before British conquered Bengal, India was far the world's largest producer of cotton textile. इसमें हम देख रहे हैं कि एक 1750 के अराउंड में जो बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले का टाइम पीरियड है, ये 1750 के आसपास ना भारत पूरी दुनिया में किसके लिए फेमस था, कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी आगे था, मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल. राइट स्टूडेंट. Indian textile had a long renown both for their fine quality and exquisite craftsmanship. They were extensively traded in Southeast Asia, Java, Sumatra and Penang, in West and Central Asia. From the 16th century, European trading companies began buying Indian textile for the sale in Europe. Memories of the flourishing trade and the craftsmanship of Indian weavers is preserved in many works still current in English and other language. It is interesting to trace the origin of such words and see what they tell us. Right, students? फिर क्या हुआ कि भारतीय कपड़े जो लंबे समय से अपनी मतलब क्वालिटी के लिए और बहुत जो फाइन उसमें जो कारीगरी की जा रही थी उसके लिए दुनिया भर में जो मशहूर हो रहे थे, तो जो हमारा ये वेस्टर्न सेंट्रल एशिया है, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया, जो कि जावा और सुमात्रा, पेनांग, और जो हमारा मीन्स साउथ ईस्टर्न एशिया, और उसके बाद जो हमारा वेस्टर्न और मिड एशिया का जो पार्ट है, इन कपड़ों का भी भारी व्यापार यहाँ पर होने लगा. 16th सेंचुरी के आसपास यूरोप की जो व्यापारी कंपनी थी, यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी. ठीक है. उसके बाद बहुत फ्लरिश हुआ, ये जो ट्रेडिंग था बहुत फ्लरिश हुआ, और जो भारतीय बुनकर यानी वीवर्स थे, उनकी इस क्वालिटी को मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में बहुत सारे लोगों ने अपने शब्दों में कहा कि मतलब हम बोल सकते हैं कि काफ़ी अप्रिशिएट किया. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस. और ऐसे शब्द जो थे जिनकी जो रूट को भी ढूंढना बहुत मुश्किल था, कि उनका अर्थ जानना भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि वो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में कैसे अप्रिशिएट किया गया है. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ओके स्टूडेंट, फॉर टुडे दिस इज़ ओके, एंड I think I should stop here, and tomorrow we'll discuss what words tells histories. ठीक है, शब्दों में इतिहास छिपा है, यानी words tells us histories, मतलब इतिहास बताते हैं शब्द. Okay, so we'll discuss it. Thank you very much students. Have a good day.